Yes, like we always. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Radha Vrindavan Chandra की जय श्री गौर निताय की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय Hare Krishna. From last class we started discussing chapter 8, attaining the supreme. भगवान को प्राप्त कैसे करें, भगवान की ज्ञान प्राप्त करने के बाद, after attaining the knowledge of the absolute, how to attain the supreme Lord, the supreme. We completed discussing 3 shlokas, and we are in the first section where the first 4 shlokas deals with questions, technical questions asked by Arjuna and the answers for them given by Krishna. Of course, throughout the chapter, पूरे अध्याय में कृष्णा उसका उत्तर देते जाएंगे विस्तार में, लेकिन संक्षिप्त में थर्ड एंड फोर्थ श्लोका, तीसरे और चौथे श्लोक में उन्होंने बता दिया अर्जुन को अपना उत्तर. So yesterday we learned how we are fragment of God. हम भगवान के अंश हैं और हम गिर सकते हैं. हमारा पोजीशन क्या है? छूता अक्षरा, ये हमने पढ़ा, चौथे श्लोक में हमने पढ़ा. एंड द सुप्रीम लॉर्ड इज अच्युता अक्षरा, अक्षरा ब्रह्म परमम. That's what we learned yesterday. I'll just display that shloka for you, where we stopped at shloka number 4. We did not go into the purport of shloka number 4. So, adibhutam ksharo bhava purushas-chadi daivatam adiyagno aham evatra dehe dehabhrutam vara. Previous to the shloka, we learned aksharam brahma paramam. Then we were talking about bhuta bhavod bhava karo विसर्ग कर्म संगीता. तो चौथे श्लोक में हम क्या पढ़ रहे हैं? अधिभूतम क्षरो भावा. जो भूत गण है, द लिविंग एंटिटीज आर क्षरा, दे आर प्रोन टू फॉल डाउन, छूता. Whereas in the previous shloka we learned Krishna, Supreme Lord, is Achyuta. Achyuta means Akshara, Akshara Brahma Paramam. So regarding this shloka, we did the translation yesterday. So we will go into the discussion of purport of this shloka. The physical nature is constantly changing. So the physical nature is known to be endlessly mutable. Adibhutam ksharo bhavaha. Kshara, changing, mutation is happening always. And what are the changes? The material body generally passes through 6 stages. तो जो ये भौतिक शरीर है, 6 तरह का विकार हमको देखने को मिलता है. और ये 6 तरह का विकार क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम दे आर बॉर्न. तो जो जन्म लेना है वो भी एक विकार है, एक चेंज है. देन दे ग्रो, तो बढ़ते हैं, तो वो एक विकार है. तीसरा, दे रिमेन फॉर सम ड्यूरेशन, तो कुछ समय के लिए रहते हैं. चौथा, दे प्रोड्यूस सम बाई प्रोडक्ट्स, तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स का उत्पन्न वो करते हैं. दे dwindle, मतलब उनका स्थिति एक जैसे नहीं होता है, ऊपर नीचे होता रहता है. एंड देन दे वैनिश, और कुछ समय के बाद वो अदृश्य हो जाते हैं. So they vanish. So this physical nature is called adibhutam. Adibhutam का स्वभाव क्या है? Adibhutam ksharo bhavaha.
That's what we learned in shloka number 4. Because it is created at a certain point, it will be annihilated at a certain point. The conception of universal form of the Supreme Lord that includes all demigods and different planets is called Adidaivata. So next, Arjuna has asked about Adidaiva. Adidaiva का क्या मतलब है? What is this Adidaiva? So Krishna gives a hint that the universal form of him, which is actually a material form, contains the devatas also as the parts of this universal form. And who are the devatas? Yesterday we learned they are the administrative demigods, ministers in the government, universal government of Lord Krishna. तो मंत्री का एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य रूपी मंत्री का कार्य करते हैं सारे देवता. They work under the guidance of the Lord. They work for the government of the Lord. The individual soul accompanies the body. तो जीवा इस देह के साथ अभी है. The super soul, a plenary representation of Lord Krishna, जो अधियज्ञा परमात्मा है, वो भगवान श्री कृष्णा का एक विस्तार है और उसको परमात्मा और अधियज्ञा बोलते हैं. It is situated in the heart. तो आत्मा भी देह के हृदय में बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं परमात्मा, उनको देखते हुए, उनके कार्य का विटनेस बनते हुए, तो और उनके कार्य का सैंक्शनर बनते हुए हनुमंता उपदृष्टा, तो साक्षी बन के परमात्मा बैठे हैं. The word eva is particularly important in the context of this verse. The word eva मतलब certainly, surely. Because this word, the Lord stresses that Paramatma is not different from him. तो इससे हमें पता चलता है कि परमात्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान का एक विस्तार है परमात्मा. The super soul, the supreme personality of Godhead, seated beside the individual soul. हृदय में परमात्मा आत्मा के साथ बैठे हैं. तो श्री कृष्णा इज द बेस्ट फ्रेंड. कोई भी योनि में हम जाएं, कोई भी देह हमें प्राप्त हो, तो उस देह में आत्मा है जो हम हैं और परमात्मा भी है. ही इज नेवर गोइंग टू डेजर्ट अस. तो हमें कभी वो मतलब डिस्कार्ड नहीं करते, वो हमेशा हमारा साथ रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं. ही इज वेटिंग फॉर द जीवा टू टर्न टुवर्ड्स हिम. द मोमेंट ही टर्न्स, ही टेक्स over their life as the supervisor. तब तक हम अपना ही कार्य करते रहेंगे और भगवान अंतर्यामी बनके, मन साक्षी बनके हमें अच्छे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. He's giving good instructions to us, but not everything we will listen to and implement in our life. That is our problem. And he is the source of the consciousness. तो देह में जो what we can say that जो कॉन्शियसनेस है, जो हमें पता चलता है कि हम एक देह है, तो मैं अपने उंगलियों को मतलब I can feel it, I can feel my toes. So all this is possible because of the power given by the Supreme Lord. So even if I have to enjoy my senses, I need the power from the power of the Lord. The Lord has to empower me, then only I can even enjoy my senses. Otherwise हाथ का पैरालिसिस हो जाएगा. बहुत सारे ऐसे डिजीजेस है जिसको हम बोलते हैं कि they cannot taste, they cannot, we know blindness, they cannot see, we know deafness, they cannot hear. So different types of senses can be affected. So only by the immense grace of the Lord we can even enjoy our senses. The super soul gives the jiva an opportunity to act freely. चलो आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, स्वतंत्र आप रहना चाहते हो मुझसे, तो ट्राई करके देखो. एक मैं आपको मौका देता हूं, देखिए कितना आप कर पाएंगे. एंड ही विटनेसेस हिज एक्टिविटीज. और वो लाइक अ ब्यूटीफुल फादर, बच्चों को बोल दिया, मतलब एक अधर्मी पुत्र को बोल दिया आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, चले जाओ यहां से, घर से बेघर कर दिया. लेकिन एक ब्यूटीफुल फादर विल कीप आई ऑन दैट सन. He will keep the news of that son. खबर लेते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, because that is his concern. So Lord is also like that. Of course, the Lord
हमें कभी त्यागते नहीं है, हमारे साथ रह के तो हमें जितना हो सके उतना वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। तो एज परमात्मा, फिर एक गुरु के माध्यम से, भक्त के माध्यम से, किसी और के माध्यम से वो अपना इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते हैं। The functions of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically becomes clarified for the pure Krishna conscious devotee। जो शुद्ध भक्त है वो हृदय में स्थित भगवान को पहचानते हैं और जो उनसे, उनकी प्रेरणा से उनको जो ज्ञान मिल रहा है उसको वो पहचानते हैं। gigantic universal form of the Lord is called अधिदैवता। तो जो विश्व रूप है उसको कृष्ण बोलते हैं ये अधिदैवतम। आप जो पूछ रहे हैं अधिदैवतम को अत्र, तो ये अधिदैवता मेरे विश्व रूप है जिसके सारे अंग हम देवता है। And it is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord। तो ये प्रारंभिक भक्तों के लिए या भक्त बनने से पहले विश्व रूप का उल्लेख कृष्णा करते हैं। लेकिन in the 11th chapter, in the 12th chapter he switches over to the pure devotional service। तो भक्ति के माध्यम से कैसे भगवान त्रिभंगी द्विभुज श्याम सुंदरा, तो भगवान का निज स्वरूप है उसके ऊपर हम कैसे ध्यान कर सकें। The neophyte is advised to contemplate the universal form whose legs are considered the lower planets। तो ये जो विश्व रूप है तो उनका जो चरण है वो पाताल लोक का प्रतीक है, रसताल पाताल तलातल लोक का प्रतीक है। And whose eyes are considered as sun and moon। और सूर्य और चंद्र भगवान के दो अक्षी है, जो अक्ष है, जो नेत्र है। तो सूर्य चंद्र के साक्षी बोलते हैं ना, भगवान कैसे देख रहे विश्व रूप से, सूर्य और चंद्र के माध्यम से। तो जब शादी विवाह होता है या फिर यज्ञ में हम कोई संकल्प लेते हैं तो हम बोलते हैं अग्नि साक्षी, सूर्य साक्षी, चंद्र साक्षी, ए नक्षत्र साक्षी, वायु साक्षी। तो ये सब भगवान के ये अनेक शक्तियां हैं और सूर्य चंद्र उनकी नेत्र है। इन द यूनिवर्सल फॉर्म एंड उस हेड इज कंसिडर्ड द अपर प्लैनेटरी सिस्टम। और उस विश्व रूप का जो सर है वो स्वर्ग लोक और ऊपर के लोक है, अप टू ब्रह्म लोक। सो यू कैन सी दैट एंड द हेड कंसिस्ट ऑफ मेनी हेड्स ऑफ द देवतास आल्सो, क्योंकि इट इज कमिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग द हायर प्लैनेट्स। सो कृष्ण हैविंग सेड दिस, Krishna is answering another question that Arjuna asked। अर्जुना ने एक और प्रश्न पूछा है कि how can a devotee remember you at the time of death? So Krishna is answering that now। So we move into the next section। The next section is remembering Krishna at the time of death। 8.5 to 8.8 is dealing with shlokas where Krishna explains how a person, how a devotee, person means only a devotee can remember the Lord, how a devotee can remember the Lord at the time of death and make his death successful। So आज का विषय है, actually it is art of dying। So we रविशंकर जी चलाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, प्रभुपाद जी क्या चला रहे, कौन सा संस्था, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ डाइंग सक्सेसफुली। तो कृष्णा सेज अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। So Krishna is telling antakale, antakale at the end of life, and then he says mameva smaran, then the person must remember me। He is now talking of the two-handed dvibhuja tribhangi shama sundara form, the form that the Lord is standing in front of Arjuna। He's talking, you must remember this form। So and whoever at the time of death, antakale, अंतकाल में जो भी quits his body मुक्त्वा कलेवरम, जो इस भौतिक देह को त्याग देता है, कलेवरम इज द मटेरियल बॉडी, तो जो त्याग देता है,
Remembering me alone, माम एव स्मरण, certainly you must remember me and me alone. So what is तो भगवान बोलते हैं मेरा ही स्मरण करते हुए जो प्राण त्यागता है, at once attains my nature, यह प्रयाति समद भावम, तो वो प्रयाण काल में मेरा ही भाव वो पाएगा, मेरे पास ही वो आएगा, attains my nature. Of this there is no doubt. याति न अस्ति अत्र संशय, न अस्ति अत्र संशय. There is no doubt about this. One who thinks about Krishna at the time of death, he will attain Krishna. So if we have to go back to Godhead, what we must do at the time of death, I must remember Krishna. मुझे एग्जाम, मुझे डिग्री चाहिए तो मुझे एग्जाम में अच्छे आंसर्स लिखना चाहिए और अच्छे आंसर्स लिखने के लिए मुझे अभ्यास करना चाहिए. So similarly, if I have to remember the Lord at the time of that, I must practice remembering the Lord at every moment of my life. So जो हम भगवान की स्मरण करते हैं, and in Kali Yuga, what is recommended is chanting of the holy names of the Lord, and especially Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So by chanting Hare Krishna Mahamantra, we are doing the practice, abhyasa of remembering the Lord always. So we are practicing the art of dying. So Krishna is telling asamshayaha. So Krishna is giving such a big assurance. We take life insurance. Krishna is giving us death insurance. Death insurance, what? Death we are anyway going to face. वो उसके लिए उसका कोई संशय नहीं है. उसमें इंश्योरेंस दे रहे हैं प्रभु भगवान कृष्णा की, आप इसकी चिंता मत करो, असंशय आप मेरे पास आएंगे, मेरे बारे में सोचो, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेरे बारे में सोचना. तो ये अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी इसका पालन करेंगे जीवन भर, मुझे याद रखते हुए, हरे कृष्ण मंत्र जपा करते हुए, अंत में आप मेरे पास आएंगे. So in this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. कितना मूल्यवान है कृष्ण भावनामृत, जो ये मूवमेंट प्रभुपाद जी ने बनाया, जिसमें हम कृष्ण भावनामृत स्थिति में रह सकते हैं. प्रभुपाद, we all have to be greatly indebted. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental abode of Supreme Lord. सीधे गोलोका, no stoppages, direct flight, no stoppage flights. तो सीधा सीधा गोलोक वृंदावन भगवान के समक्ष उनके भाव में हम जाएंगे और उनका सेवा हम कंटिन्यू करेंगे. तो वर्ड स्मरण इज इम्पोर्टेंट. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है स्मरण, टू रिमेम्बर. रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा इज नॉट पॉसिबल फॉर द इम्प्योर सोल. तो अच्छा, लोग बोलते अच्छा तो जिंदगी भर जो करना है कर सकते हैं, बस हमें मरण के समय हमें भगवान को याद करना है, इतना ही है. इतना ही है नहीं है, ये करना मुश्किल है. एक अशुद्ध भक्त, अशुद्ध आत्मा कृष्णा को याद कर ही नहीं पाएंगे, कृष्णा मौका ही नहीं देंगे. कृष्णा इज सिटिंग एज परमात्मा, नो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, उन्हीं से स्मृति भी आ रहा है. तो इफ हैव टू रिमेम्बर समथिंग, इवन मटेरियल थिंग, that has to come from the power of Krishna. So will he allow Ashuddha Bhakta to think of him and take undue advantage of such an opportunity? Although Lord भगवान दयालु है, लेकिन वो किसी को undue advantage लेने नहीं देंगे. He will भगवान शंकर आशुतोष है, जो चाहे जो मांगे बिना सोचे समझे दे देंगे. But Krishna is not like that. बिना सोचे समझे जो अहित है जीव को, वो कभी नहीं देंगे. अच्छा, वो कोई भगवान को याद कर रहा है जिंदगी के अंत में और भगवान के पास जाएगा, उसको क्यों वो बाधा डाल रहे? बाधा इसलिए डाल रहे क्यों जो जिंदगी भर अभ्यास नहीं कर पाया, वो चलो इस माध्यम से गोलोक चला भी गया, वहां पे भी उटपटांग काम ही करेगा. He will not be able to serve the Lord. So Krishna will not allow somebody to
get into that situation at all. An unqualified person will not be transferred to Goloka because it is not good for him. So remember Krishna, one should chant Mahamantra. इसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है. Incessantly, सततम कीर्तयन्तो माम. Krishna is telling, not ठीक है 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला का छूट दे दिया, बट दैट इज मिनिमम. तो जितना हो सके हमें हमारे दिन में 16 से ज्यादा भी अगर हो सकेगा तो हमें करना चाहिए. माला नहीं कर पाएंगे तो सेवा करना चाहिए, सेवा नहीं कर पाएंगे तो प्रसाद का मेवा करना चाहिए. समौ कृष्ण भावनामृत में हमें स्थित रहना है. सो and Lord Chaitanya is telling to be tolerant than a tree, taroriva sahishnuna, humbler than the blade of grass. That he is telling that trunadapi sunichena, offering all respect to others, दूसरों को सम्मान देना, हमेशा दूसरे व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, without requesting respect in return. मैं तभी दूंगा आपको सम्मान जब आप मुझे सम्मान देंगे. नो, हमें उस स्थिति में जाना है. तृणादपि सुनीचेना, घास की तरह, तृण घास की तरह, सुनीचेना, तो इतना हमें हम्बल रहना है. तरोरिव सहिष्णुना, लोग अपना व्यवहार करते रहे लेकिन हमें सहिष्णुना, भगवान को ऐसे गुण बहुत ही प्रिय है, ऐसे व्यक्ति बहुत प्रिय है. तरोरिव सहिष्णुना, अमानीन मान देना, अमानीन, किसी से वो रेस्पेक्ट की याचना नहीं कर रहा है. ओए व्हाई आर यू टेलिंग दिस, क्यों आपने ऐसे बोल दिया. लोगों को बोलने दीजिए, बस आप हाथ जोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए. मान देना, ऐसे लोगों को भी, बाकी लोगों को भी और ऐसे लोगों को भी आप रेस्पेक्ट से, आदर से ही व्यवहार कीजिए. तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति ही कीर्तनीय सदा हरि. Only such a person can remember the Lord always. प्रयाणा काले भगवान को याद रखना है तो हमें ऐसे बनना है. We have to become like this. So in such a way one will be able to depart from the body, successfully remembering Krishna and attain the supreme goal. अरे मैं क्यों, why should I tolerate what others are doing? मेरा अवहेलन कर रहे हैं, मेरा निंदा कर रहे हैं, मुझे मेरे साथ हिंसा कर रहे हैं, मुझे उल्टे सीधे बात बोल रहे हैं. They are talking nonsense about me, they are disrespecting me. Don't worry about all that. Krishna is taking account of everything. तो हमारा ध्येय यही होना चाहिए, कृष्णा को संतृप्त करना. कृष्णा will be pleased. तृणादपि सुनीचेना, तरोरिव सहिष्णुना, अमानीन मान देना. Then he will allow you. कीर्तनीय सदा हरि. वरना आप इसी उलझन में फंसे रहेंगे. दिन भर माला हाथ में है, जप माला उंगलियों पे है, लेकिन मन वही सोच रहा है, उसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, व्हाई एवरीथिंग इज हैपनिंग लाइक दिस, सारे दुख मुझे ढूंढ के क्यों आ रहा है, सब लोग मेरे पीछे क्यों है. हम यही सोचते रहेंगे. तो वो सोच करते करते हम जपा कर नहीं पाएंगे. तो ऐसे व्यक्ति जपा कर ही नहीं पाएगा. So if we have to be able to do japa, then we must live it to the Lord and we must endeavor to become as pure devotees as possible in this life by the grace of the Lord and Guru and devotees. So Krishna now further says, now अभी तो उन्होंने बोल दिया अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेरम, मुझे याद करो. तो टेक्निक भी बताएंगे कृष्णा. तो भगवद गीता इज नॉट जस्ट अ बुक ऑफ सिंपली थियरी. भगवद गीता also gives us the ways, the techniques of how to do what Krishna is telling, and Krishna himself will give it to us. So Krishna is now telling, yam yam vapi smaran bhavam त्यजत्यन्ते कलेवरम tam tamevaiti kaunteya sada tadbhava bhavitah. So sada tadbhava bhavitah. So always in that state of being, remembering. Again, he's talking about remembering him. So what is he telling? Whatever state of being one remembers. So why is Krishna telling, remember me at the time of death?
If you remember Krishna at the time of death, what is this shloka we read? We must say mad bhavam. He will attain the nature of Krishna. He will attain Krishna. So if you remember anything else, what happens? Yam yam vapi smaran bhavam त्यजत अंते कलेवरम. तो जब प्रयाण काल, मरण काल में यम यम वापी स्मरण भावम, जो भाव में हम कुछ चीज के बारे में सोच रहे, तम तम एव इति कौन्तेय, तम तम एव इति, certainly that state, हे अर्जुन कुंती पुत्र कौन्तेय, सदा तद भाव भावितः, that state he will attain without fail. इसका भी कोई संशय नहीं है. जिसके बारे में सोच के वो प्राण त्यागेगा, उसी भाव का देह उसको अगले जीवन में मिलना है. तो भगवान को याद करके त्यागेंगे तो भगवान मिल जाएंगे. दुनियादारी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये सोच के हम प्राण त्यागेंगे तो हमें फिर इस मर्त्य लोक में वापस आना पड़ेगा और जीवन का कष्ट को भोगना पड़ेगा. तो how do I stop doing that? कीर्तनिया सदा हरि. And how can I do कीर्तनिया सदा हरि? अमानीना मानदेना. और वो कैसे होगा? ऋणादपि सुनिचेना तारोरिव सहिष्णुना. प्रभु जी ये तो थियरी है, प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाएंगे, लोग हमें दबा देंगे, दफना देंगे. ठीक है, कोई बात नहीं है. अगर आपको यहाँ लड़के झगड़ के वीर शूर बनना है, बनिए. बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा शूरवीर जो थे मिट्टी में मिल चुके हैं, पता नहीं कौन सी योनि में है, कौन सी क्रीम कीट बन चुके हैं. हमें तो ऐसा नहीं बनना है ना. हमें भगवान के पास जाना है, हमें भगवान के पास रहना है अभी. और इस अंते कलेवरम, हमें भगवान के पास जाना है. अगर ये हमारा गोल है तो हमें तो ये करना पड़ेगा. वरना हम लड़ते लड़ाई करके जीवन में परमवीर चक्र हमने पा लिया, वो पा लिया, ये पा लिया, यही करते रहेंगे. We are not saying that you should not be defensive, you should not take care of that. साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसको छोड़ रहे हैं. We should not get affected by it. We must take evasive action. और कोई हमें लाठी मारने के लिए आ रहा है तो हमें दूर सरकना चाहिए. We must try to escape it. Not that हमारो ऐसे. We are not हरिदास ठाकुर. हरिदास ठाकुर का वो शक्ति था, जब नवाब ने उनको 22 जो मार्केट प्लेसेस में चाबुक मारने की आदेश दिया था, तो उन्होंने केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो करते रहे. हम उस स्थिति में नहीं है. हमें कोशिश करना चाहिए, बट वी मस्ट टेक evasive action. तो they say that दुष्ट से दूर रहो. तो we must take that kind of actions, but we must not, घिन्न नहीं होना चाहिए. We must not behave like them. उन्होंने हानि पहुंचा दिया, मैं भी हानि पहुंचाऊंगा. We must not be like that. वो मुझसे ईर्ष्या करते, मैं भी ईर्ष्या करूंगा. वो मुझसे मतलब नफरत करते, मैं भी करूंगी. No, we should not be like this. So Krishna is telling about if you remember me, you will come to me. If you remember anything else, you will become that. यान्ति देवा व्रतान देवा. जो देवता को याद करते हैं, व्रता देवा यान्ति देवा, देव लोक में पहुंच जाएंगे, स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे. पितृन यान्ति पितृन व्रतः. पितरों के बारे में, पूर्वजों के बारे में, अब घर परिवार के बारे में सोच के प्राण त्याग दिया, उन्हीं के पास वापस आना है. देन भूतेज्य यान्ति भूतेज्य यान्ति भूताया. That means if somebody is remembering bhuta, ghosts, worshipping the ghosts, then he will go to the ghosts, he will become one ghost, he will become a ghost worshipper. मध्याचिनो अपि यान्ति माम. जो मेरा स्मरण करेगा मेरे पास आएगा. कृष्णा ये साफ साफ बता रहे हैं. This is the art of dying. The process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained. How can one die in proper state of mind? कैसे एक आदर्श मृत्यु क्या हो? Maharaj Bharata thought of deer at the time of death and so was transferred to that form of life. Maharaj Bharata
यंग आयु में, बहुत ही कम आयु में घर परिवार राज्य सब छोड़ दिया, भक्ति करने के लिए आए, वन में अकेले रहे, लेकिन एक हिरण के चक्कर में पड़ गए। तो अंत काल में वो सोच रहे थे इस हिरण का क्या होगा, मैं तो प्राण त्याग रहा हूं, तो हिरण बन के आना पड़ा उनको। सच ए डेंजरस थिंग। सो of course, the cumulative effect of thoughts and actions of one's life influences one thought at the moment of death. तो अंत काल में एग्जाम में उत्तर में वही लिखूंगा जो मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया ना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में उत्तर आ जाएगा। अंत काल में कृष्णा को स्मरण कर लूंगा, जीवन भर नहीं किया तो अंत काल में कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। सो फैंटास्मगोरिया है, दैट इज फैंटेसी थिंकिंग लाइक दैट। सो Therefore, the actions of this life determine one's future state of being. जो हम आज कार्य कर रहे हैं हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है और हमारे अगले देह को भी डिसाइड कर रहा है। That's why we say you can make your own destiny. इसका मतलब क्या है? By my actions, I am making my destiny. Not only my future, I am deciding. My next life also is decided by the actions that I do in this life. We must never forget this. If one is transcendently absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental. Madhava, spiritual body, we will get, which is लायक to serve Krishna. कृष्णा की सेवा करने की लायक ऐसा एक देह मिलेगा। Therefore, the chanting of Hare Krishna is the best process of successfully changing one state of being to transcendental life. So, how important is chanting of Hare Krishna mantra, जिसको हम बहुत lightly लेते हैं, जिसको बहुत ही ऑफेंसेस के साथ हम करते हैं। या तो मन भटक रहा है, मन औरों के बारे में सोच रहा है, आज मैं इसको इससे बदला लूंगी, उससे बदला लूंगा, यही बात सोच रहा है, एंड मोबाइल हाथ में है, दुनिया भर की चीजें हम देख रहे हैं, भगवान हमारे जीप पे आके नाचने के लिए तैयार है, इज वेटिंग टू एंटर अवर ईयर्स एंड अवर हार्ट। हम क्या कर रहे हैं, कान के पर्दे को बंद कर दिया, मतलब दरवाजा बंद। कृष्णा को बुलाया लेकिन दरवाजा बंद है, नो एंट्री फॉर कृष्णा। तो हृदय के अंदर वो कैसे पहुंचेंगे, कैसे परिशुद्ध करेंगे, हमें नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स चैंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। प्रभु जी क्या करे, अभी तो हमारा तो कुछ ऑफेंसेस तो हो ही जाता है, ठीक है, ये ज्ञात रहे कि आप ऑफेंसेस कर रहे हो और उससे उभरने की हमें कोशिश करना चाहिए। दैट इज पॉसिबल बाई concentrating on hearing what you are chanting. तो ये जो दिए है, when we put effort, then Lord also will come and help us. God helps those who help themselves. हाथ लगाइए आप, तो जैसे कि वो चिड़िया, समुद्र उनका अंडे को निगल लिया, तो वो चिड़िया अपने चोंच से पानी निकालने की कोशिश कर रही है, समुद्र को बोल रही है तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ड्राई कर दूंगा, तो चोंच से वो पानी निकाल रही है। So Garuda Dev sees that, Arey, my sister, she is doing something. He goes and asks, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहानी बता दिया। तो गरुड़ देव ने बोल दिया समुद्रराज को, क्या आप उनके अंडे वापस देंगे या फिर मैं शुरू हो जाऊं? See, Lord helps, or the agent of the Lord comes and helps those who are sincere. So similarly for us, हमें कोशिश करना चाहिए। तो कोशिश जब हम करेंगे तहे दिल से, भगवान अंदर बैठे हैं, हनुमंतो उपदृष्टा, विटनेस, साक्षी, तुरंत पहचान जाएंगे। किसी और को पहचान में आए ना आए, नो प्रॉब्लम, भगवान को पहचान में आ गए, दैट इज द सक्सेस ऑफ अवर लाइफ। दैट डजंट मीन दैट वी शुड बी नो डिसरेस्पेक्टफुल टू अदर्स। तुम कुछ भी सोच लो, मस्ट आल्सो एंडिवर टू सेट गुड स्टैंडर्ड्स। सब लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे, ये हमें कोशिश करना चाहिए, लेकिन कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कुछ भी करें, उसमें वो नुक्स निकालेंगे और आपके बारे में भला बुरा कहेंगे। सो वी मस्ट रिमेंबर दिस, वी मस्ट नॉट गेट अफेक्टेड unnecessarily by what others are thinking about us. At the same time, we must also not be unduly careless in our behavior. So Krishna is telling next, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। So Arjun Kshatriya,
is coming back to the square one. Krishna is telling, अब तुम यहाँ युद्ध करने के लिए आए हो, तो तुम्हें तो मैंने बोल दिया, सदा तद्भाव भाविता यम यम वापि स्मरण भावम, ऑलवेज रिमेम्बर मी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। लेकिन करते करते माम अनुस्मर युद्ध, मेरे बारे में सोचते सोचते आप अपना काम करो, युद्ध करो आप। मैं अर्पित मनोबुद्धि, जो कार्य कर रहे हो वो मेरे लिए आप अर्पित करो। तो ये करने से मां में वैश्यसि असंशया, मेरे पास जरूर आओगे अर्जुना, असंशया, कोई भी मेरे पास आएगा। इफ माम अनुस्मर युद्धचा, मेरा ध्यान करते हुए अपना कार्य जो करता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऑलवेज थ्रू द डे, नॉट दैट 5 minutes इन अ डे, 5 मिनट घंटी बजा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, हो गया, नो। मई अर्पिता मनोबुद्धि, जो भी आप कर रहे हो दिन भर, मई अर्पिता मनोबुद्धि, वेरी रेस्पॉन्सिबली, आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, आई एम वर्किंग फॉर द लॉर्ड। तो मैं भगवान का सेवक हूँ, तो मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, ये मनोबुद्धि रख के हम कार्य करेंगे। मां में वैश्यसि असंशया, therefore Arjuna should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty। इसका prescribed duty क्या है? युद्धचा, fighting। with your activities dedicated to me, मयि अर्पित मनोबुद्धिर कृष्णार्पणमस्तु बोलते हुए, your mind and intelligence fixed on me, हमेशा भगवान को स्मरण करते हुए, बुद्धि से उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए, you will attain me without doubt। Again Krishna is bringing about the word असंशयः, और क्या assurance चाहिए एक भक्त को। So this instruction to Arjuna is very important for all men and women engaged in material activities। ऐसा नहीं है कि सारे भौतिक कार्य छोड़ छाड़ के हमें अभी बैठना है, no, continue to do your duties। The Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagement। ऐसा नहीं है कि सारे हमारे कर्तव्यों को हम एक साइड में रख के अभी हम भजन करेंगे। That is not bhajan। One can continue them at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna। Of course, if somebody can set aside everything and think only of Krishna, is capable of doing that like Haridas Tagore, he should do it। लेकिन क्योंकि we are not capable, तो we will be leading a false life। तो एक क्या मिथ्या जीवन हम जीने के ये हो जाएंगे, तो हमें वो करना नहीं है। Slowly Prabhupada and devotees and Krishna will lead us to a point where we can always think of him at all times। This will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna। ऐसे करते करते मन और बुद्धि कृष्णा में प्रवेश कर लेंगे, कृष्णा के आदि बन जाएंगे, कृष्णा को अर्पित करने लायक हो जाएंगे। By chanting Krishna's names, one will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt। What is Prabhupada ending the purport with? Prabhupada is telling, simply by chanting Hare Krishna mantra, आप लायक बन जाएंगे, मन मयि अर्पिता मनोबुद्धिर, and you'll be transferred to supreme planet। Prabhupada is assuring now, asamshaya, without a doubt। So, having received this instruction from the spiritual master, हमें भगवद गीता से क्या सीख मिल रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपा करना है, भगवान के बारे में हमेशा सोचना है, हमारे कर्तव्यों का पालन करना है, शुद्ध भक्त बनने की ओर हमें जाना है। तो इससे हमें द आर्ट ऑफ डाइंग सक्सेसफुली करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। We'll meet again next week because weekends we are going to do from tomorrow Srila Prabhupada Ashraya sessions। Thank you very much। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare